Hello students. Today we discuss the exercise, right? 1.3 here. Also the two questions, 3 questions we completed. Question number 1, 2, and 4. Okay, in previous lectures. Okay. Also all the topics are we discussed. Okay, related to this exercise, right? Okay. So now let's start the question number 3. Let A is equal to 1, 2. And other the elements in the form of set 3, 4, okay, 5. Which of the following statements are incorrect and why? Right? Okay. So first question is a 3, 4 is a subset of A. Okay. It is correct or incorrect? First of that. Here. The first is okay. So we know that belongs to, not belong to, subset and not subset, right? Okay. So here it's simple. क्या है? So here the 3, 4 is the elements of this set, not a subset, right? So it's simple. So क्या लिख सकते हो? This is the incorrect statement. Reason 3 and 4 is belongs, is the elements of set है. Understand? Okay. चलो 3, 4 is belongs to N. So yes, okay, is a correct statement. Understand? Belongs to is right. Okay. Now 3, 4, 4. Okay. The one remember simple. 1 is a belongs to A. What has a 1? Right? Is a subset of A. So similarly here, okay, 3, 4 अगर ये नहीं होता ब्रैकेट, ओके, मतलब ब्रेसिस नहीं होता तो आप कह सकते थे कि बिलोंग्स टू है, बट यहाँ पे है, सो दैट्स व्हाई इज रीजन, ओके, ए सबसेट है, सो इज दिस इज अगेन, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट, राइट? ओके, नाउ 1 इज बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मतलब मेंबर्स, तो 1 इज अ मेंबर ऑफ दिस गिवन सेट, यस, सो दिस इज आल्सो, okay, is a correct, okay, is a correct statement, right? Understand? Okay, now the 1 is a subset of A. Okay, अगर subset है तो किस में होना चाहिए? Basis में. तो 1 is the elements here. So आप लिख सकते हो कि 1 is a subset of A. So okay, is not a correct, okay, statement. Understand? Right? Not correct. Now 1, 2 and 5. This one is 5 students. So 1, 2 and 5 is a subset of A. Yes. सारे मेंबर इन ब्रेसेस है तो आप लिख सकते हैं. So is a, okay, correct statement. Understand? Right? Very easy to solve this. Okay. 1 to 5 is belongs to, no, 1 belongs to A, 2 is belongs to A, 5 is belongs to, not together in the braces. So is easy, is not a correct statement. Right? Is not correct statement. Right? Is not correct statement. Is not correct statement. Understand? Now 1, 2, 3. So 1, 2 and 3. But 3, 4 is a members. Not 3 is the different. Okay, 3, 4 are together is the elements. Okay, so only 3 and 4 is missing. So Siti Baba is not a correct. Is not a correct statement. Understand? Right? Clear? Okay. 5 belongs to, 5 is a set, null set. Okay, so it's a subset, not a set. Okay, so it also is not a correct statement. Again, null set is, the null set is a subset of every set. So yes, is a right, is a correct statement.
Understand? Okay. Here phi is a member of any set here, not a single phi, right? So is a subset of a member, so a के अंदर है ही नहीं ना, so a possible नहीं है. So therefore is not a correct statement. Is not a correct statement. Understand? Clear? बस yes no में आपको आंसर देना था, रीजन हमने बता दिया. Okay, डिस्कस कर लिया. Now we are going to the question number 5. We move the question number 5. बच्चों, how many elements has the power set A if A is a null set? Okay, तो मुझे बताओ null set का मतलब क्या है? A set containing the zero elements, right? No elements. So here आप लिख सकते हो कि number of element, okay, inside A तो इज 0. कितना है? 0. सो सीधी बात है, क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर 0 है तो क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट तो एक ही होगा, तो आप लिख सकते हो. सो देयरफॉर नंबर ऑफ, हमें पूछा है नंबर ऑफ इन P ऑफ A, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स of P of A is equal to 2 raised to, जितने मेंबर्स होते हैं 0 तो कितना आ गया बच्चों? 1. सीधी बात है, राइट? 2 raised to m होता है तो m तो 0 है ना, एलिमेंट्स तो 0 है, तो आपने क्या लिख दिया? 2 raised to 0 that means 1. चलो क्लियर, राइट? ओके, अब एक टॉपिक रह गया था तो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं, राइट? सो ए टॉपिक इज अ इंटरवल और द सबसेट ऑफ R. इट्स वेरी सिंपल. क्या पूछा गया है? इज सिंपली, राइट? क्या पूछा? इंटरवल है द सबसेट ऑफ R. क्लियर? ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं. फर्स्ट इज ओके क्लोज इंटरवल. क्या है? क्लोज, राइट? इंटरवल. सो दिस वन इज अ क्लोज. व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लोज इंटरवल, राइट? सो नाउ just see that, right? Closed interval, that means there are the two quantity A and this one is B. See that this is the dark line, huh? So this is called the closed interval. That means here the below R, so where X, simple that X here, so X belongs to R when A less than or equal to X less than or equal to B. So it is the closed interval. The closed interval, right? Now open interval. Okay, open interval. Students, so simple. We draw the line that means here A and that means B. So A and that means B. So this line is A, right? So the open interval, that means small braces, okay, AB. So the X, which kind of X? X belongs to R, comma A less than X less than B. So just check this thinking कि अगर क्लोज इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, ओपन इंटरवल है तो ओनली लेस देन आ रहा है. ओके, नाउ अनदर सेट इज सिंपल द close open interval, right? तो इसको इंडिकेट करना है नंबर लाइन से. तो जस्ट सी दैट, राइट? A, ध्यान से A एंड B, राइट? तो क्लोज और A ओपन इंटरवल, राइट? So simple, where the A close and B open, right? Where X belongs to R, comma A less than or equal to X less than B. Understand? This is the close open interval. And then after, okay, open close interval, right? So discuss this. It's very simple. Again, so the number line, here the A, here B, two are the numbers,
right? So between this number and this one is a gap, right? So open close interval. So A close open and B close. So that means the x, which kind of x? X belongs to R. A less than x less than or equal to B. पहले बोला जहाँ पे इक्वल टू है बच्चों वहां पे क्लोज हो जाएगा, तो वहां पे ओनली लेस देन एक्स, तो वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल्स. ओके, सो यू नो दैट द फोर काइंड ऑफ द simply the intervals, right? Close interval, open interval. Okay, close open and open close intervals. Understand this? Clear? Okay, so let's start question number 6. So write the following has the intervals. चलो मुझे बताओ, इसको हमें आंसर देना है, राइट? तो क्या आ सकता है इसका आंसर? इज वेरी इजी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स, ओके, तो हम लोग अगर शेयर कर रहे हैं ना, तो देखो क्या आएगा? x x belongs to -4 less than x less than or equal to 6. Understand this? Okay, so now x belongs to -4 at x, so we know that this is the open and this is the close. So answer is equal to 4 -4 comma 6 and close. Then you represent the number lines. So this one is -4, this one is 6. So this is the interval. So clear? Okay. Now number 2. Just see that x belongs to R, -12 less than not equal to. So yes, open interval. So -12 and -10. So in the number line, right? So this one -12, this one -10, right? So 0 again, students, right? So okay, close. This one is open. So open close interval. So open close interval, right? So therefore 0 and 7, right? Got it? Right? Okay. Fourth from the clock. 4. X belongs to R. Both are, answer is equal to both are close. So 3 and 4, right? X belongs to R. So we know that this one is 3. Okay, this one is 4. So you know this. Your answer is become. But it is very easy, right? यानी आपने सेट बिल्डर में से आपने ओरिजिनल फॉर्म ला दिया. अब इस फॉर्म में से आपको क्या करना है? बहुत सिंपली उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट? तो चलो फर्स्ट आंसर इज स्टूडेंट्स वेयर x, दोनों कैसे? क्लोज, ओपन. ओपन का मतलब क्या होगा? लेस देन, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा. तो x वेयर x बिलोंग्स टू R, -3 लेस देन x लेस देन 0. अब इसको नंबर लाइन से बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट? ओके, नाउ हियर 6 and 12. ओके, बोथ आर क्लोज. क्लोज है तो क्या करना है? बस x बिलोंग्स टू R. यहाँ पे लिखोगे 6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12, राइट? इंटरवल रिप्रेजेंट करना आसान हो गया, राइट? चलो अब अगेन x देखो, एक ओपन है, ये ओपन और एक क्लोज है. तो वेयर x बिलोंग्स टू R, राइट? तो क्या करेंगे आप? 6 लिखोगे, यहाँ पे 12. ओके, लेस देन x लेस देन, ओपन है तो एज इट इज, और क्लोज है तो ऐसे. चलो क्लियर? ओके, नाउ लास्ट वन, क्लोज द ओपन, राइट? सो देयरफॉर x वेयर x बिलोंग्स टू R, राइट? ओके, कॉमा क्या लिखोगे? -23 लेस देन x लेस देन 5. अब देखो कहाँ पे ओपन है? ए ओपन है और ए क्लोज है, तो क्लोज है तो आप इक्वल टू लगा. आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट कर दिया. चलो अंडरस्टैंड? क्लियर? ओके, समझ में आ गया? तो बहुत आसान चीज थी, वो आपने अभी करके दिखा दी. चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8. कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर? देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको जो दिया है ना, वो ऐसा कौन से फॉर्म में है, बराबर वो डिसाइड करना है. सो दिस वन इज अ फॉर्म
ओके, यूनिवर्सल फॉर्म आपको इंडिकेट करना है। तो आई हैव बुक, तो हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन बुक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर ए, आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखना है, ओके, ऑफ द गिवन सेट। ओके, तो आपका जो गिवन सेट है वो क्या है, द सेट ऑफ, ओके, मेरे पास जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है उसके अंदर लिखा है कि राइट एंगल, द सेट ऑफ राइट एंगल्स। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट एंगल, राइट, द सेट ऑफ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा लिखा है ना, हाँ, राइट ट्राइंगल। तो राइट यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट ट्राइंगल, राइट, मान लो, ओके, तो ये पूरा प्लेन है, दिस बॉडी इज अ प्लेन, उसके अंदर मैं राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप जानते हो टाइप ऑफ द राइट, टाइप ऑफ द ट्राइंगल्स, ओके, स्केलर कह सकते हो, राइट एंगल आइसोसेल्स, isosceles, equilateral, okay, so we know that, so all types of the triangle। तो उसका अगर यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं, उसको u से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो u क्या हो सकता है, अब मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या लिख सकते हो, बहुत सिंपल है, तो सेट ऑफ ट्राइंगल, क्या लिख सकते हो, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, राइट, x इज अ ट्राइंगल, ओके। तो क्या लिखेंगे आप बताओ, सिंपल, x इज अ ट्राइंगल, X इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, कोई भी हो सकता है ना उसके टाइप में से, तो यूनिवर्सल होता है, उसमें से हमारा सेट अलग हुआ वो खाली राइट ट्राइंगल है। तो बाय डेफिनेशन हम जानते हैं यूनिवर्सल सेट, राइट, सेट ऑफ ऑल सच सेट आप कह सकते हो। चलो नंबर 2, उसी के अंदर द सेट ऑफ, ओके, द सेट ऑफ, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया हमने, द सेट ऑफ, ओके, आइसोसेल्स, ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल्स, ओके। तो सेम है ना बच्चों, ये राइट एंगल था, ए भी टाइप ऑफ द ट्राइंगल और ये भी आइसोसेलेस है, तो टाइप ऑफ द ट्राइंगल। तो हम लोग उसका यूनिवर्सल सेट क्या लिखते हैं, सेम, x, ओके, x इज अ ट्राइंगल, मतलब ये कोई भी टाइप का ट्राइंगल इन अ प्लेन, अंडरस्टैंड, ओके। तो इट इज वेरी इजी टू डिस्कवर द universal set of the given set compared to the given set, understand, clear, okay। Now question number 9, okay, so 9 is, question number 9 is very simple, so given set, अगर आपके पास different kind of set है, चलो कौन कौन से सेट दिए 9 के अंदर वो हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात है, चलो सेट ए, ओके, सेट बी एंड सेट सी इज गिवन है। ए बी सी क्या है चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर ए बी सी जो है 1 3 5 है, ओके, 1 3 5 है, ये 2 4 6 है, जबकि सी के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सी है, ओके, वेयर इज सी, ओके, तो सी इज द सेट 0 2 4 6 एंड 8, राइट, ओके। अगर हम लोग अगर मान लें कि अगर एक किसके यूनिवर्सल सेट है, मैं अगर आपको बता दूं तो 0 1 2 3 4 5 6, ओके, 7 एक्चुअली में है नहीं, तो मैं अगर लिख दूं तो डायरेक्ट 8, अगर इतना भी लिखूं तो इसमें से सारे सेट्स बन जाते हैं, राइट। तो इन सब के सेट का क्या यूनिवर्सल सेट है, राइट। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, तो फर्स्ट है 0 1 2 3 4 5 6, राइट, ओके। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चंस, ओके, तो आप कह सकते हो कि जो है फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है
वो आपको दिया है 0 1 0 1 2 3 4 5 6। तो सीधी बात है, कौन सा मिसिंग दिख रहा है आपको? अगर यूनिवर्सल सेट लेना है तो A इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट, सो दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन 3 सेट्स। मतलब C रह जाता है ना, तो अगर आना चाहिए, अगर तीनों को कंडीशन बेस हम लोग ले रहे हैं तो राइट। चलो उसके बाद हम आपके पास है 5। ओके, तो 5 इज अ कंटेंट सेट है ना, नो एलिमेंट्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता, चलो ये भी कैंसल राइट। तो थर्ड केस के अंदर क्या है आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है 8 9 10, तो सारे एलिमेंट थर्ड के अंदर आ जाते हैं राइट। चेक कर लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, भले उससे ज्यादा है लेकिन ये सारे एलिमेंट इसी के अंदर तो आ ही जाते हैं, तो यस इसको आप यूनिवर्सल सेट ले सकते हो। चलो फोर्थ के अंदर आपके पास क्या है 1 है 2 है 3 है राइट, 1 2 3 ओके 4 5 6 7 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे 0 मिसिंग है, क्या है 0 मिसिंग, अगर 0 नहीं है तो आप इसको नहीं ले सकते राइट। तो सीधी बात है, अगर तीनों कंटेंट के लिए सोचे, तीनों सेट के लिए सोचे, तो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट ए हो सकता है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे नंबर 3 में आ जाते हैं। तो 3 इज मतलब नंबर 3 इज अ सबसेट यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल 3 सेट्स गिवन सेट राइट। सो दिस इज द वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके, सो मैंने पहले ही बोला था कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट 3-4 एक्सरसाइज तक राइट। तो लास्ट एक्सरसाइज को ही थोड़ा फोकस करना है, बाकी बहुत इजी है, इसको बाय डेफिनेशन प्रिपेयर करते हो, सेट इनडायरेक्टली हर एक चैप्टर में अप्लाई हो सकता है इसके लिए राइट। इन नेक्स्ट वीडियो वी ओके कंटिन्यू द चैप्टर नंबर 1, चालू ही रखेंगे, इसका जो डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल देन एंड गुड बाय।